Good morning, students. As we are doing about this dictionaries, in this chapter we have already done how we can create dictionary in a different ways. Okay, as you know through the program also, accessing elements of dictionary means how we can access the elements of our dictionary. Traversing a dictionary we have already done, right, to access all the elements one by one with the help of for loop. Accessing key or values simultaneously, how we can access. In our last video we have discussed about multiple ways of creating dictionary, like initializing a dictionary, adding key values pair to an empty dictionary. By creating empty dictionary we can create dictionary, creating a dictionary from name and value pair. In this method I told you four different ways how we can create a dictionary. First was specify key value pairs as keyword argument to dict function. Second was specify comma separated key value pairs. Third, specify key separately and corresponding values separately, like this using zip function. And fourth was specify key value pair separately in the form of sequence, either in the list or either in the tuple. So we had already discussed about these things. Okay, adding elements to dictionary, I told you कि how we can add, updating or modifying existing elements in a dictionary. I told you about this कि updating an element is similar to what we did just now, that we can change the value of an existing key using the assignment as per the सिंटेक्स. आपको डिक्शनरी का नाम देना है, की देना है, और जो भी वैल्यू आप रखना चाहते हैं वो वैल्यू आप रख सकते हैं. फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय में सैलरी नाम की है, उसके अंदर 10,000 वैल्यू है, उसको आपने 20,000 में चेंज कर दिया, राइट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम ए डिक्शनरी. फॉर डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम ए डिक्शनरी वी कैन यूज द del स्टेटमेंट, राइट. फॉर एग्जांपल del, then dictionary name, then key. For example, you can see emp13 is a name of dictionary. तो उसमें से आपको age जो की है वो आपको डिलीट करनी है, तो you will write del emp13, this is the name of your dictionary. Age is the key that is passed as an argument, right. So you can see it is deleted from the list. del स्टेटमेंट, द की दैट यू आर गिविंग टू डिलीट मस्ट एग्जिस्ट, मतलब जो भी की आप देंगे तो वो उसके अंदर होनी चाहिए वो की, नहीं तो एरर आ जाएगी, राइट. नेक्स्ट थिंग इज चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ए की. आपको पता करना है कि कोई भी पर्टिकुलर की आपके डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल है या नहीं है. उसके लिए आप दो मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ करेंगे, इन एंड नॉट इन. एक इन और दूसरा नॉट इन, राइट. फॉर एग्जाम्पल EMPL इज़ द नेम ऑफ योर डिक्शनरी. उसके अंदर जो वैल्यू हैं, जो की वैल्यू पेयर्स हैं, वो सैलरी 10,000, एज 24 और नेम जॉन है. सो हम लिखते हैं एज, यानी कि पहले जो की आपको फाइंड करनी है उसका नाम लिखना है, फिर इन ऑपरेटर का यूज़ करना है, और फिर आपको डिक्शनरी का नाम लिखना है, राइट. यू कैन सी द सिंटेक्स, पहले की, फिर इन, फिर डिक्शनरी का नाम. सो इट विल गिव यू ट्रू रिजल्ट. आगे हमने चेक किया जॉन इन EMPL, अभी इसने फॉल्स दिया है. अब जॉन देखिए, जॉन जो है वो की नहीं है, वो वैल्यू है, तो इस तरह से फॉल्स. अगर आप नॉट इन का यूज़ करेंगे तो उसका रिवर्स आएगा, एज नॉट इन EMPL, वो है, ट्रू रिजल्ट आना चाहिए था तो नॉट लगाने दिया, फॉल्स रिजल्ट आएगा. तो वी कैन चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ ए की लाइक दिस. यू कैन सी सम अदर एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल नेम इन dict1,
So name is given, that is true. XYZ in dict1, that is false because it is a value, not the key. So in such a way, we can search or we can check the existence of a particular key, right? We can understand it with an example. Consider already created dictionary M. हमने पहले बनाया था जो प्रोग्राम, that stores all the numbers and marks, roll number and marks. So write a program to input a roll number and delete it from the dictionary. Display error message if the roll number does not exist in the dictionary. तो ऊपर आपको वही प्रोग्राम क्रिएट करना है जो शुरू में आपने बनाया था. उसके बाद RNO इक्वल टू इंट, इनपुट किया आपने रोल नंबर, फिर आप लिखेंगे इफ़ RNO यानी कि की लिखेंगे पहले, इन देन डिक्शनरी का नाम. आपकी डिक्शनरी का जो नाम है वो M है. अगर वो है तो उसको डिलीट कर दे, प्रोग्राम यही है. अगर वो है उसके अंदर तो उसको डिलीट किया जाएगा. तो del M ब्रैकेट में RNO और आप प्रिंट कर देंगे एक मैसेज कि डिलीटेड फ्रॉम द डिक्शनरी. एल्स नहीं तो अगर वो नहीं है तो RNO डज नॉट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी. ये वाला मैसेज आप जो है प्रिंट करेंगे. यू कैन सी द आउटपुट. आपकी डिक्शनरी ऊपर क्रिएट होगी. सपोज ये पार्ट आपको खुद लिखना है. ये आपकी डिक्शनरी है. आपने 5 रोल नंबर इसके अंदर एंटर किया. सो यू कैन सी 5 आपको डिलीट कर दिया उसको, राइट. सो इन दिस वे we can check the existence of a key with the help of the program also, right? Now let us discuss dictionary functions and methods. So first method is len. Get length of dictionary. If you want to get the length of a dictionary, use the len function जैसा कि आपने लिस्ट में किया था. To get the length of dictionary, that is the count of key value pair, you can use the len function. This function returns length of the dictionary, that is the count of elements, यानी कि की वैल्यू पेयर्स आपके कितने हैं ये आपको शो कराएगा. ये इसका सिंटैक्स रहेगा. पहले लिखेंगे आप len और ब्रैकेट के अंदर आप पास करेंगे अपनी डिक्शनरी का नाम. सो यू कैन सी नेम, सैलरी, एज. इसके अंदर 3 की पेयर हैं. सो आंसर विल बी 3. अब आपने उसमें एक और ऐड कर दिया. सपोज डेप्ट और सेल जो है, आपको डेप्ट आपका की है, सेल्स उसकी वैल्यू है. ये एक की पेयर आपने और ऐड कर दिया. और दोबारा से अगर हम यही फंक्शन यूज़ करते हैं तो इट विल गिव len 4 वैल्यू इट विल गिव. क्रिएटिंग न्यू डिक्शनरी विद द हेल्प ऑफ डिक्ट फंक्शन. जैसे आपने लिस्ट क्रिएट की थी विद द हेल्प ऑफ लिस्ट फंक्शन, इसी तरह से हम डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ dict function, right? So dict function is used to create a new dictionary from the iterable and other the dictionaries. Mapping, the syntax dict mapping or dict iterable. You can see a program to create a new dictionary. Program is create a dictionary where key, value, pairs, roll number, marks, values are available in 3 different lists: age 167.82, 75.5, 3, 72.5. सो इन दिस वे डाटा के अंदर आपने जो है वो लिस्ट पास कर दी. डी इक्वल टू डिक्ट, ये आपने फंक्शन यूज कर दिया. और डाटा जिसके अंदर आपकी लिस्ट की वैल्यूज़ दी हुई हैं वो आपने पास कर दी. इससे आपकी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी लाइक दिस. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ डिक्ट फंक्शन यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी, राइट. नाउ लेट्स कम टू एक्सेसिंग आइटम्स, कीज एंड वैल्यूज़. यानी उसके अंदर आपको किसी भी डिक्शनरी के अंदर आइटम एक्सेस करनी है, की या वैल्यू एक्सेस करनी है, तो उसके लिए गेट फंक्शन, आइटम्स फंक्शन, कीज फंक्शन और वैल्यूज़ फंक्शन या मेथड्स होते हैं, राइट. सो वी कैन एक्सेस इंडिविजुअल वैल्यूज़, ऑल आइटम्स, कीज एंड वैल्यूज़ ऑफ द डिक्शनरी यूजिंग दीज मेथड्स. सपोज dict dot get, dict dot item. dict dot get क्या करेगा? टू गेट वैल्यू ऑफ द गिवन की. आपने कोई भी की पास कर दी. हम एग्जाम्पल अभी आगे करेंगे इसमें.
So dict dot items, dict dot keys, dict dot values. So if we want to get the values, to get all the values of the dictionary, we can get it. So with the help of these 4 functions or 4 different methods, we can get the value accordingly, right? So first method is get method. With this method, we can get the item with the given key similar to the dictionary key. जैसे आपने डिक्शनरी और की दिया था, ऐसे ही सेम ये भी काम करेगा. आप चाहें तो इस तरह से फंक्शन यूज कर सकते हैं. यू कैन सी द एग्जांपल. पहले आपको डिक्शनरी का नाम लिखना है, फिर डॉट गेट लिखना है, फिर की आपको एंटर करना है, राइट. सपोज EMP या EMPL1 वॉट एवर, दिस इज योर डिक्शनरी. आपने लिखा EMPL1 डॉट गेट डेप्थ. तो क्या होगा, डेप्थ नाम की जो की है उसकी जो वैल्यू है वो आपको एक्सेस हो जाएगी, राइट. सिमिलरली you can use other values also. Items method. This method returns all of the items in the dictionary as a sequence of key value tuples. Note that these are returns in no particular order. कोई order इसमें नहीं होता है, वो किसी भी order में आ सकते हैं आपके. So dot items करेंगे, उस पर आप for loop लगा दें इस तरह से. आइटम्स जो है आपकी एक्सेस हो जाएंगी इन दिस वे. यू कैन सी सैलरी, एज, नेम, सब कुछ उसमें से एक्सेस हो. एम्प्लॉय डॉट आइटम्स, राइट. यू कैन सी अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो. ओके. So with the help of this items method, we can access the items functions returns a sequence of keys value pairs. Next function is keys functions or keys method. We have already worked with this method. This method returns all of the keys in the dictionary as a sequence of keys. अगर आपको खाली की एक्सेस करनी है तो एम्प्लॉई यानी कि एम्प्लॉई आपका डिक्शनरी का नाम है, कोई भी डिक्शनरी का नाम डॉट KEYS कीज ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज. तो आपको जो आंसर मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा वो खाली कीज़ का मिलेगा, ठीक है. सिमिलरली वैल्यू मेथड क्या करेगा, सारी की सारी वैल्यू आपको शो करा देगा. जैसे एम्प्लॉई आपकी डिक्शनरी का नाम है डॉट वैल्यूज, तो इसमें सारी की सारी जो वैल्यूज दी हुई हैं वो आपकी एक्सेस हो जाएंगी, right. So in this way we can find out either a single key, single value, or all items in the key value pairs, or all the keys or all the values. Okay, so let's try to understand with 2 different examples how we can access the keys and values with the help of example. So the dictionary as stores the roll number, names of the students who have been selected to participate in national event. Write a program to display the roll numbers selected. आपने पहले ऊपर रोल नंबर और मार्क्स रोल नंबर वाली डिक्शनरी क्रिएट करनी है, फिर आपको डिक्शनरी क्रिएटेड का मैसेज लिखना है और आप उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है. और उसके बाद अगर आपको उसकी कीज लेनी है तो प्रिंट S डॉट कीज. S आपकी डिक्शनरी का नाम है. सपोज ये आपकी डिक्शनरी है, दिस इज योर डिक्शनरी क्रिएटेड, सिलेक्टेड रोल नंबर्स आर. तो देखिए यू कैन सी ऑल जो कीज हैं सारी की सारी वो आपके आउटपुट में आ गई हैं. सेकंड प्रोग्राम है आपका जो द डिक्शनरी एस स्टोर्स रोल नंबर्स नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव बीन सिलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन नेशनल इवेंट. मॉडिफाई द प्रीवियस प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, राइट. तो आपको थोड़ा सा चेंज करना है बस. एस डॉट वैल्यूज, जहाँ पर आपने एस डॉट की लिखा था वहाँ पर आपको एस डॉट वैल्यूज लिखना है. तो फिर उसकी सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो आपको एक्सेस हो जाएंगी, आपको आउटपुट में मिल जाएंगी, राइट.
extend oblique update dictionary with the new key value pairs. तो update with the help of update method. The update method merges मिलाना the key values pairs from the new dictionary into the original dictionary. Adding or replacing as needed. अगर आप चाहते हैं कि एक डिक्शनरी की वैल्यू दूसरी डिक्शनरी में ऐड हो जाए इस तरह से, तो आप यहाँ से डिक्शनरी डॉट अपडेट और दूसरी डिक्शनरी का नाम, एक बार फर्स्ट डिक्शनरी का नाम, आपके पास दो डिक्शनरी होनी चाहिए. द डिक्शनरीज आइटम विल बी टेकन फॉर अपडेटिंग अदर डिक्शनरी. फॉर एग्जाम्पल, सी the element of dictionary employee 2 have overridden the elements of dictionary employee 1 having the same keys either names and salary. You can see, देखिए पहले एम्प्लॉय 1 एक आपकी डिक्शनरी है जिसके अंदर नेम, सैलरी, एज ये वैल्यू दी हुई है. दूसरी डिक्शनरी देखिए नेम, सैलरी, डेप्ट. अब उसमें एज है, इसमें डेप्ट है. तो जब हम दोनों को अपडेट करेंगे, जैसे एम्प्लॉय 1 डॉट अपडेट एम्प्लॉय 2, अब एम्प्लॉय 2 की जो वैल्यू है न्यू की वैल्यू पेयर गेट एडिड. एम्प्लॉय 2 की जो वैल्यू है डेप्ट सेल, ये इसके अंदर ऐड हो जाएगी. यहाँ देखिए पहली वैल्यू सैलरी, इधर देखिए इस साइड में एग्जिस्टिंग की वैल्यू पेयर्स अपडेटेड. सैलरी 54,000 ये ऐड होगी, पहली वैल्यू ये आ गई, दूसरी डेप्ट आ गई आपकी, ठीक है. सेल्स नेम आपका दिया आ गया और एज उधर से उठा लिया. तो क्या होगा, जो भी पर्टिकुलर की नहीं है इसके अंदर वो उसके अंदर ऐड होती चली जाएगी. राइट. नेक्स्ट है डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम डिक्शनरी. इसके लिए आपको क्लियर और डेल दो मेथड यूज़ करने हैं. टू डिलीट ए की फ्रॉम ए डिक्शनरी यू हैव ऑलरेडी लर्न टू यूज़ द डेल स्टेटमेंट अंडर द सेक्शन गिवन 7.34. वहाँ आपने डेल स्टेटमेंट सीखी थी. मैंने बताया था कि आपको पहले डेल लिखना है, फिर डिक्शनरी का नाम लिखना है और फिर की लिखना है, तो वो डिलीट हो जाएगी. राइट. और डेल अगर आप डिक्शनरी का नाम लिखेंगे तो कंप्लीट डिलीट हो जाएगा सारा का सारा. और क्लियर मेथड, दिस मेथड रिमूव्स ऑल आइटम्स. अगर हम चाहते हैं कि डिक्शनरी की सारी वैल्यू एक साथ डिलीट हो जाएं, दिस मेथड रिमूव्स ऑल आइटम्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड द डिक्शनरी बिकम्स एम्प्टी. पोस्ट दिस मेथड, द सिंटैक्स टू यूज दिस मेथड इस पहले डिक्शनरी का नाम लिखना है, फिर डॉट क्लियर ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज. जैसे एम्प्लॉय आपके एक डिक्शनरी है तो डॉट क्लियर लिखेंगे, और एम्प्लॉय को आप प्रिंट करके देखेंगे तो यू विल सी ब्लैंक डिक्शनरी आ गई बिल्कुल, इसके अंदर भी कोई मेथड नहीं है. द क्लियर मेथड डज नॉट डिलीट द डिक्शनरी ऑब्जेक्ट. मतलब आपका डिक्शनरी तो रहेगी, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी, वो डिलीट नहीं हुई है. इट जस्ट डिलीट ऑल द एलिमेंट्स इनसाइड द dictionary and empty dictionary object remains. If however you want to delete the dictionary also, so that dictionary is also removed and no object remains, then you can use the del statement along with the dictionary name. अगर आपको पूरी आप चाहते हैं ये डिक्शनरी ख़त्म हो जाए हमारे सिस्टम से, तो फिर आपको del statement का यूज़ करना है और फिर डिक्शनरी का नाम लिखना है. So in this way we can delete a dictionary also, we can do clear all the elements also, delete a particular element also. You can see a note, the clear method remove all the elements of a dictionary and makes it empty dictionary, while del statement removes the complete dictionary as an object. After del statement with a dictionary name, the dictionary object no more exists, not even empty dictionary. Right. So this is the summary of dictionary manipulation functions and methods. You can see len function, get, item, keys, values, update, clear. All these functions are given in a like a table, so you can also learn them from here. Right. These are some main points you have to read also. You can learn them, and the chapter of your dictionary
it is ended. This marks the end of your chapter. I hope everything is clear to now, right? You have to learn all the things and do practice. Okay, students? So this marks the end of your chapter. Thank you.